camp or the entire online training activities going, it is happening here is lifelong learning with mindfulness. I think this is a wonderful go, and we have taken up the similar topic to be discussed today with through Neha ma'am. It's very wonderful, and I believe the entire sessions which is happening from since 15th of June, everyone might be enjoying. We have a schedule of programs starting from morning 6 o'clock with yoga, meditations, and then the workshop, then activities, movie shows. I think a lot of things you have planned. All children might be enjoying these activities, and it is very fortunate to have a similar person who loves these activities, holistic developmental activities. And she is a very close to our association. She is a fantastic educationist, and she is working basically for overall development of kids in various capacities. She used to be, the training head of Delhi's Center of Excellence. So all of us must greet, and we all expect a fantastic session where connectivity with children, she immediately makes it. So I think it will be a great honor for me that she has accepted today's invitation, and we'll have a overwhelming and a fantastic session today. Ma'am, on behalf of my entire team, I welcome you, and it's over to you for today's workshop. Thank you very much, Dr. Nair. And hello, everyone. Okay, let me see whether you have brushed your teeth in the morning or not. Give me a big smile and show that you have brushed your teeth. I want everybody's videos on. I can just see the smile. I can't see your teeth. Let me see. I want to see your teeth. Jaldi se. Ma'am, are you there? I will request Ritika to keep ma'am on the speaker, view, so that that will be easier for us to find out. Good morning, sir. Actually, there is some connectivity error with the ma'am. She is not visible. Okay, once she joins again, she should be kept in the speaker view. She will be visible when she will speak, sir. She has a network issue, I believe. Excuse me, sir. Ma'am has disconnected. Don't worry, she is trying to join. Yes, sir.
network and I was off the screen. I was not part of the session, right? Now, if we talk about network and if we talk about connectivity, we talk about so many things that are happening around us in the virtual format these days. So we also have to think that what is it that we are doing, right? Acha, just tell me one thing. If you have one ball, okay, you play with balls, small balls, those green balls and those white soft balls. Do you play with them? If you play, just give me a thumbs up. You know from where to give the thumbs up? So if you know, you play, right? Very good. Now, if you have to play, if you do juggling, if you know, we at times toss the ball in the air and then catch it. Then again we toss and then we catch it. So if you do it with one ball, will you be able to do it? I'm sure you'll be able to. Now, if you do it with two balls, will you do it? How many can do it with two balls in hand? Give me a thumbs up, those who can do it with two balls. Those who can toss them in air and hold them back. And then again toss them and hold them back. Very good. Now, if you have three balls in hand, how many of you will be able to do it? Three balls. Okay, Yuvraj says yes. Who else can do it? So, and if we get four balls, then what will happen? So the point is this, that when we have one ball or two ball to do a thing, we are able to do it easily. But when we have three balls, when we have four balls, we have more number of balls, then most of us will not be able to do it. But what do we do now? We juggle with too many things, too many balls together these days. Huh? So what all do we juggle with? We at times are, typing a message. We are at times taking a call. We are also on Zoom. We are also watching something on the screen, maybe a cartoon. At the same time, we are also playing a game. So we do multiple things at times together. We do it. When we do a lot of things together, what happens is that we lose our focus. आपको मम्मी पापा और टीचर्स बोलते हैं ना, जो भी करो ध्यान से करो, कहते हैं ना ध्यान से करो. So what is this ध्यान से करना? So this ध्यान से करना is doing everything that you do mindfully. पूरा फोकस के साथ, पूरा माइंड उसमें डालते हुए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक ही चीज को, वन थिंग एट अ टाइम. तो ये तो हो गई बात हमारी माइंडफुलनेस की, जिसको बचपन से सब हमको कहते आ रहे हैं ध्यान से करना चाहिए, हमें सब कुछ सोच समझ के अच्छे से और पूरे फोकस के साथ करना चाहिए. बट अभी ये बिग वर्ड हो गया क्योंकि सबने इसको माइंडफुलनेस का नाम दे दिया. हाँ, बचपन से मम्मी डांट लगाती आ रही है, ध्यान से काम करो, ध्यान से गिलास उठा के रखो, ध्यान से कॉपी किताब में लिखो. तो बचपन से मम्मा बोलती थी ध्यान से, तो हम बड़े लोग भी नहीं सुनते थे. पर अभी जब यूके यूएस से ये सब आकर बोलने लगे कि जी डू एवरीथिंग विद माइंडफुलनेस, तो हम बड़े लोग भी बड़ा ध्यान से सुनने लगे हैं. तो अब इस बड़े लोगों के ध्यान से सुनने वाली बात पर एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सबको स्टोरी सुनी अच्छी लगती है ना? जिसको नहीं अच्छी लगती है वो बता दो मुझे. तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप सबको स्टोरी सुनी अच्छी लगती है. तो ये स्टोरी आप ही जैसे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में है और एक बड़े से एल्डरली इंसान के बारे में है. तो एक फार्मर था. वो जो फार्मर था वो एक दिन अपना जो उनका बार्न यार्ड होता है, द प्लेस वेयर दे कीप देयर हे, देयर store their grains which are to be processed and everything. So he was working in that yard. Now what happened,
he had a watch. He had a very nice watch which was gifted to him by his grandparents. So anything that you get as a gift, that becomes precious to you. And if it is being given by one of your grandparents, then it becomes even more precious, क्योंकि उसमें आपके grandparents का आशीर्वाद होता है ना. तो अब वो जो फार्मर था, उसके पास एक बड़ी अच्छी सी घड़ी थी जो उसके ग्रैंडफादर ने उसको दी थी. थोड़ी देर काम करने के बाद उसने रियलाइज किया कि उसके हाथ में तो घड़ी है ही नहीं. अब वो परेशान हो गया. उसने इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, ऊपर देखा, नीचे देखा, इवन साइड में देखना जरा. 1 मिनट अपने साइड में देखो तुम लोग, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, साइड में देखो, कहीं उनकी घड़ी तो नहीं रखी हुई है तुम्हारे साइड में. किसी के साइड में मिली क्या? नहीं मिली, उनको भी नहीं मिली थी. तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बाहर कुछ, हम जैसे तुम जैसे बच्चे खेल रहे थे, तब मैं भी छोटी थी ना, तो मैं भी तुम लोगों के साथ ही खेल रही थी. तो हम लोग सब बाहर खेल रहे थे और उन्होंने हमें बुलाया, बच्चों. हमने कहा जी. उन्होंने कहा मेरी घड़ी खो गई है. हमने कहा ओ ये तो बहुत बुरा हुआ. अगर किसी को कोई चीज खो जाती तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, अरे अरे वेरी बैड, चलो ढूंढते हैं. तो उन्होंने कहा हाँ आप मेरी मदद करो घड़ी ढूंढने में. हमने कहा ठीक है, चलो आपकी मदद कर देते हैं. अब हम सब बच्चे, जिसमें मैं भी थी, नायक सर भी उस टाइम छोटे से बच्चे थे, और आपकी नीलम मैम भी छोटी सी बच्ची थी, और आपके जितने टीचर्स यहाँ बेटे सब छोटे बच्चे थे, और आप लोग भी हम इंक्लूड कर लेते, आप और छोटे वाले बच्चे थे उसमें. तो सारे बच्चों ने वहां पर खूब ढूंढना शुरू किया. यहाँ देखा, वहां देखा, सब जगह देखा, पर घड़ी को नहीं मिलना था. तो घड़ी नहीं मिली. तो जब कोई चीज हम करते हैं और जो नहीं होती है, तो हम क्या होते हैं, हम थोड़े से उदास होते हैं, थोड़े से अपसेट होते हैं. फिर हम सोचते हैं जाने दो, ये तो हो ही नहीं सकता, और हम बाहर चले गए. अब वो किसान ने भी कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, शायद नहीं मिलनी थी, और वो भी उदास होके एक जगह बैठ गया. अब मैंने आपको बताया ना, नायक सर भी आपके बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे उन दिनों. तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जो छोटे से बच्चे वाले आपके डॉक्टर नायक थे, वो अंदर फिर आए उस किसान के पास. उन्होंने कहा सर अगर आप मुझे परमिशन दो तो मैं एक बार फिर से घड़ी ढूंढना चाहता हूँ. किसान ने कहा कि चलो भाई, जब सब लोगों ने इतना देख लिया, नहीं मिली, तो अब तुम देखना चाहते हो, तुम भी देख लो. अब सर अंदर गए, ठीक है. उन्होंने को सुनने की कोशिश की. क्या किया उन्होंने? घड़ी को सुनने की कोशिश की. और कैसे सुनने की कोशिश की? माइंडफुलनेस के साथ, ध्यान से. और जब आप ध्यान से कोई काम करते हैं तो वो होती है ना, करके देखेगा. तो थोड़ी देर बाद वो किसान तो बाहर बैठा हुआ उदास सोच रहा था कि हाय मेरी घड़ी मिलेगी या नहीं. थोड़ी देर बाद नायक सर बड़ी सी स्माइल के साथ हाथ में घड़ी लेकर बाहर आते देखे. अब वो किसान बड़ा खुश. उसने कहा वाह बेटा, तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया. कहाँ से मिल गई तुम्हें घड़ी? नायक सर ने कहा थी तो ये अंदर ही. उन्होंने कहा अरे वाह, तो जब अंदर थी तो जब किसी और को नहीं मिली तो तुम्हें कैसे मिल गई? तो आपको पता है नायक सर ने क्या जवाब दिया होगा? कोई गेस कर सकता है? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में लिखकर कि सर ने क्या जवाब दिया होगा. मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारे जवाबों का. माइंडफुलनेस. यस. तो तरुण राइट्स कि सर ने ध्यान से ढूंढा. उन्होंने जवाब दिया कि मैंने ध्यान से ढूंढा, माइंडफुलनेस के साथ ढूंढा. तो बच्चों, जब भी कोई बात, कोई चीज हम ध्यान से करते हैं, पूरा माइंडफुलनेस के साथ करते हैं, तो क्या होता है? हम वो चीज बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं. ठीक है. तो एक जल्दी से क्लैप छोटे वाले नायक सर के लिए जिन्होंने वो घड़ी ढूंढ दी माइंडफुलनेस के साथ. मेरे को सबके हाथ की क्लैप दिखनी चाहिए. वेरी गुड. अब
माइंडफुलनेस से क्या सिर्फ घड़ी ढूंढी जा सकती है या कुछ और भी किया जा सकता है? तो माइंडफुलनेस से हर जो चीज की जा सकती है जो आपको लगता है ठीक नहीं हो रही है, जैसे कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, जैसे कि जिस तरह से हमारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, हमारे जो हम सुनते रहते हैं ना कि थोड़े दिनों बाद अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो पानी को लेकर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वैसे तो हमारे अर्थ की अगर हम बात करें तो हमारे अर्थ में 1/3 लैंड है और 2/3 वाटर है, पर वो जो वाटर है वो समुद्र में है, ठीक है। और जब वो समुद्र का वाटर है वो पीने के लायक नहीं है, वो खारा पानी है। वो पानी ऐसा नहीं है कि जो हम अपने डेली रूटीन की चीजों में यूज कर सकें, जिसको हम कपड़े धोने में, बर्तन धोने में या किसी भी चीज में यूज कर सकें। क्योंकि घर में अगर थोड़ा सा भी नमक का पानी आ जाता है ना, खारा पानी, मम्मी से पूछना वो कितनी परेशान होती हैं। सारे बर्तनों पे, सारी जगहों पर एक लेयर लगने लगती है सॉल्ट की। तो वो पानी तो हमारे किसी यूज का नहीं है। तो हम किस पानी को यूज कर सकते हैं? हम पानी को यूज कर सकते हैं जो नदियों से हमें मिले। पर अब नदियों का भी यही हाल है कि हमने वहां भी ध्यान से उनको सुरक्षित नहीं रखा, स्वस्थ नहीं रखा। स्वस्थ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हेल्दी हर वो चीज होती है जो कि अपने आप में जो बेस्ट फॉर तरीका है, मतलब वो जिस तरीके से बेस्ट हो सकती है उस फॉर्म में रहे। पर क्या होता है कि नदी जब हमारी, जैसे हम गंगा जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब वो गौमुख से निकलती हैं, गंगोत्री में होती हैं, हरिद्वार तक भी आती हैं, तब तक वो बिल्कुल निर्मल होती हैं, क्लीन होती हैं, प्योर होती हैं। जैसे 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 वो शहरों से गुजरती हुई आगे बढ़ती जाती हैं, वो धीरे धीरे वहाँ की जो वहाँ रहने वाले लोग हैं जो बिना सोचे समझे, बिना माइंडफुलनेस के उसमें कचरा डालते हैं, एफ्लुएंस डालते हैं। एफ्लुएंस क्या होता है? जो कि एक्स्ट्रा मटेरियल जो आपकी फैक्ट्री से निकलता है, जो गंदगी एक तरीके से केमिकल्स की, वो सब जब उसमें पोर होती जाती है, आपका सीवेज का कनेक्शन उसमें होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं, तो पोल्यूशन हो जाता है। परफेक्ट, बिल्कुल सही वैष्णवी, बिल्कुल सही अंशिका, राइट, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें? हमें अपने सारे रिसोर्सेज को माइंडफुली यूज करना है, ठीक है। और हम लोग तो जो बड़े लोग हैं वो बहुत गलत लोग हैं। हम लोगों ने बेटा आप लोगों को वो अर्थ दिया ही नहीं जो आप डिजर्व करते थे। तो हमारी तरफ से कान पकड़ के सॉरी, पर अब हम कोशिश करना चाहते हैं इन चीज़ों को बेटर करने की, और इनको बेटर करने में हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो आप लोग मदद करेंगे ना? यस आशुतोष, हमें पानी सिर्फ बचाना ही नहीं है, हमें पानी साफ भी रखना है। कहाँ का पानी साफ रखना है? अपने आसपास की वाटर बॉडीज का, जैसे नदियाँ हो गई, तालाब हो गए, जो नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, उनका पानी हमें साफ भी रखना है। इसी तरह हमें हवा को साफ रखना है। हवा को कैसे साफ रखना है? वो सारी चीजें करके जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम हो, वो सारे चीजें यूज करके जिनसे पॉल्यूशन कम से कम हो। तो हमें किसको साफ रखना है? हवा को साफ रखना है, हमें पानी को साफ रखना है, हमें और भी बहुत सारी चीजों को साफ रखना है। जैसे किन किन चीजों से पॉल्यूशन होता है, किस किस तरीके का पॉल्यूशन होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है। हम क्या करते हैं? कोई भी चीज लिया, पॉलिथीन फेंका, सामान को यूज किया और खत्म। अब वो पॉलिथीन जो है, एक ही घर से अगर आप पूरा दिन चेक करोगे ना, 1 महीने के अंदर जरा आप अपना पॉलिथीन काउंट लेकर देखना। आप लोगों को एक टास्क है, करोगे? वो टास्क ये है कि एक पूरा महीना आप नोटिस करना कि आपके घर से कितना पैकेजिंग का कचरा निकलता है।
पैकेजिंग में आपकी पॉलिथीन भी हो सकती है, पैकेजिंग में वो सामान भी हो सकता है जो कि किसी चीज में रैप होके आया हो, और यहाँ हम प्लास्टिक पैकेजिंग की बात कर रहे हैं। उसमें आपके यहाँ के बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर भी हो सकते हैं, माइक्रोवेव भी हो सकता है, मम्मा ने कोई सामान अमेजोन से मंगवाया है वो भी हो सकता है, पापा ने कोई सामान टाटा क्लिक से मंगवाया हो वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक महीना ये ऑब्जर्व करो कि आपके घर में कितना प्लास्टिक का कचरा निकलता है, और उसके बाद कोशिश करो कि आप जहां तक हो सके उसको रिड्यूस कर सको। ठीक है, अगर रिड्यूस नहीं कर सकते हो कि भाई कोई चीज आनी है तो आनी है, तो उसको रिसाइकल करो, राइट। तो अगर आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपका जो वेस्ट है वो कम हो सके, वो आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा लैंड पोल्यूशन को रोकने में। आजकल क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे हम मास्क यूज कर रहे हैं, बट हम क्या करते हैं, उनको कहीं भी फेंक देते हैं, उनको डिस्पोज ही नहीं करते, यूजेबल रीयूजेबल। तो क्यों ना हम सब लोग रीयूजेबल मास्क ले लें। क्यों ना आप मम्मा से बोलो कि मम्मा हमें मास्क तो अब यूज करना है, तो अब क्यों ना आप एक मास्क हमारे लिए सिल दीजिए। बहुत सिंपल है ना। तो रीयूजेबल मास्क यूज करने की जगह, जिसको हम ठीक से डिस्पोज नहीं कर सकते, हम यूजेबल मास्क यूज कर सकते हैं। अब दस्ताने हैं, अगर आपको दस्ताने पहनने हैं तो भाई प्लास्टिक के दस्ताने क्यों पहनने हैं, कॉटन का कपड़ा लेके उसके दस्ताने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको मान लीजिए कटलरी यूज करनी है या कोई भी चीज, पानी की बोतल है, तो भाई पानी की बोतल मार्केट से खरीद करके ही क्यों पीनी है, आप अपनी बोतल भी तो कैरी कर सकते हैं जहां जाएं। ठीक है ना, तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो बेटा जो आशुतोष आप पूछ रहे हो ना, डिफरेंस बिटवीन रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस, वो यही है जो हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें अपना जो भी चीजों से हम पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, माइंडफुली, ध्यान से हमें उसको मॉनिटर करके रिड्यूस करना है, कम से कम करना है पॉल्यूट। ठीक है, जहां हम रिड्यूस नहीं कर पा रहे, जहां एसेंशियली हमें वो यूज करना ही करना है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम चीजों को रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, और रीयूज भी कर सकते हैं। तो जब हम इस तरीके से करते हैं, ये वानी ने मेरे को बहुत सारे इमोटिकॉन्स दे दिए, अब ये वानी ही मुझे बताएगी कि इन सारे इमोटिकॉन्स का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि मुझे तो इनमें से काफी सारे समझ में भी नहीं आते हैं वानी। तो हम जब ये सारे काम माइंडफुली करते हैं तो क्या होता है, हम एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं अपने लिए, और ना सिर्फ अपने लिए। जैसे आपको एक बेहतर एनवायरनमेंट देने की जिम्मेदारी हमारी थी, तो थोड़ा हमने किया, थोड़ा अब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह आने वाली जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को थोड़ी और बेटर एनवायरनमेंट देने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप लोगों को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। ये उदय क्या कर रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा। हाँ उदय, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान तो देना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा सेशन ही माइंडफुलनेस के बारे में है। ठीक है, अभी ऐसे ही बैठ जाइए ठीक से, गुड बॉय, वेरी नाइस। ओके, सो हमने बात किया जब माइंडफुलनेस का, तो जरा अब मुझे आप लोग बताओ कि आप क्या क्या कर सकते हो माइंडफुली पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए, लैंड का, एयर का, वाटर का। जल्दी से। reuse, we can use old things and this is reuse. वेरी गुड। तो आप लोग अपना जवाब जो है वो मेरे को यहाँ पर लिख कर दे सकते हो। मैं चाहती हूँ कि आपकी तरफ से हम आइडियाज लें। रिसाइकिल कर सकते हैं, किसी भी चीज का रिसाइकिल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वी विल नॉट यूज, यस ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट। रिड्यूस बेटा कम करना, किसी भी चीज का
प्रयोग कम करना, वो चीज जो नुकसान देती हो हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ को, तो उसका प्रयोग कम करना। जो हम जानते हैं कि क्या क्या चीजें ठीक नहीं है उनको करना, ठीक है। अब इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि हमारा सबका एक क्लियर विजन हो, हम सब एक बात अच्छी तरह से सोच सकें कि हमें करना क्या है। मान लो अगर हम एक बार में एक ही चीज करें, एक बार में हम डिसाइड करें कि हमें एयर को क्लीन करना है, एयर का पोल्यूशन रिड्यूस करना है, तो वो कैसे होगा? अगर हम अपना कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन कम करेंगे, ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन कैसे कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है ना। जैसे हम जो कार पूलिंग है वो कर सकते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कार्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम फ्यूल चेंज कर सकते हैं। तो कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, और कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा कम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो हम अपना पोल्यूशन के हिसाब से पोल्यूशन व्हीकल को देखते हुए अपना कंट्रीब्यूशन वहां कर सकते हैं। आजकल तो चलिए थोड़ा बेटर ही हो गया है। आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले एक इमेज व्हाट्सएप पे घूम रही थी कि लोगों ने जलंधर से हिमालय की चोटी देख ली, जो कि आज से लगभग 100 साल पहले पॉसिबल था, राइट। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि पोल्यूशन कम हो गया। पोल्यूशन कम कैसे हो गया? कि हम सब लोग एक वायरस के डर के मारे घर के अंदर बैठे हुए हैं। जब हम घर के अंदर बैठे हुए हैं तो गाड़ियां नहीं निकल रही बाहर, मोटरसाइकिल नहीं निकल रही बाहर, बसेस नहीं निकल रही। तो क्या हुआ कि अपने आप एक जो मेजर कंट्रीब्यूटर था एयर पोल्यूशन का वो कम हो गया। फैक्ट्रीज बंद हो गई, फैक्ट्रीज का धुआं आना बंद हो गया। तो ये सारी चीजें अभी तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं, पर जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, जब हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ शुरू हो जाएगी, तो आपको अपने पेरेंट्स से, अपने साथ के सब लोगों से रिक्वेस्ट करनी होगी कि जैसे अभी हम लोगों ने सोच समझकर अपनी सेफ्टी के लिए घर के अंदर रहने के साथ साथ इस पोल्यूशन को थोड़ा कम कर दिया है, इस एनवायरनमेंट को थोड़ा बेटर कर दिया है, तो आगे हमें इसे मेंटेन रखने की भी कोशिश करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी ये लेवल है पोल्यूशन का वो बढ़े ना, कम हो जाए तो और भी अच्छा, बट कम से कम ये बढ़े नहीं। क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, अगर आप पुराने ज़माने की फोटोग्राफ्स देखेंगे तो पुराने ज़माने की फोटोग्राफ्स में आसमान ज़्यादा नीला दिखता था, टू द एक्सटेंट कि जैसे आप मेरे पीछे एक इमेज देख रहे हैं ना, वर्चुअल इमेज, जहाँ पे बहुत सारे तारे हैं। पहले आसमान में इसी तरह लगता था जब आप छत की तरफ देखते थे कि तारों की चादर बिछी हुई है, आपको तारे नजर आते थे, आप कॉन्स्टेलेशंस को के देख सकते थे, उनको काउंट कर सकते थे। आप कह सकते थे, आपकी दादी नानी आपको बता पाती उस टाइम कि बेटा ये सप्तऋषि है, ये ध्रुव तारा है, ठीक है, ये उर्सा मेजर है, ये उर्सा माइनर है। बट अभी अगर हम छत देखते हैं तो उतना साफ हमें नहीं नजर आता। तो हमें अब थोड़ा बेटर जब हुआ है, पोल्यूशन का लेवल कम हुआ है, तो हमारे को अभी इसको साथ करना है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट नुकसान जो पोल्यूशन की वजह से हमें हुआ है वो है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि जो बर्फ होती है ऊपर पहाड़ों में वो तेजी से गलने लगती है। अब बर्फ गलेगी तो क्या होगा? पानी बनेगी। अब वो पानी बनेगा तो वो नदियों में जाएगा, नदियां कहाँ जाके मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं। तो वो समुद्र का लेवल बढ़ाएगा, ठीक है। जब वो समुद्र का लेवल बढ़ाएगा तो सबसे पहला नुकसान किसको होगा? जितने भी लोग कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, जो भी कंट्रीज कोस्टल एरिया में हैं, जो भी सिटीज कोस्टल एरिया में हैं, वो धीरे धीरे अपना लैंड जो है वो उनका कम होता जा रहा है। वहां पर सुनामी जैसी चीजें, अभी थोड़ी दिन पहले भी एक चक्रवात आया था ना, एक बहुत साइक्लोन आया था,
क्या नाम था उस साइक्लोन का? कोई बता सकता है? जल्दी से बताओ। वैसे पता मुझे भी नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ। कोलकाता में आया था, हाँ वो अंडमान में था, अरेबियन सागर से होता हुआ कोलकाता तक। निसर्ग, ओ माय गॉड, आयुषी इज वेरी स्मार्ट। आयुषी ने प्राइवेट ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स दिया है, बट आयुषी जी ने लिख कर दिया निसर्ग। पावनी ने लिखा निसार, एंड अर्जुन ने भी लिखा निसार, पावनी पचौरी और अर्जुन ने, राइट। तो वो जो साइक्लोन था वो क्यों आते हैं? वो साइक्लोन कहीं ना कहीं इस पर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो हम लोग क्लाइमेट में थोड़ा कुछ गड़बड़ किए हुए हैं। तो जो ग्लेशियर हैं जो हिमालय में हैं वो धीरे धीरे इरोड हो रहे हैं। अब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो इरोड होंगे, बट क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एक इतना बड़ा अपने आसपास जाल फैला लिया है कि वो तेजी से इरोड हो रहे हैं, और वो हर साल 2 इंच लैंड खा जाते हैं। अब आप कहोगे 2 इंच ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? बट कैलकुलेट करके देखो बेटा कि वो 2-2 इंच लैंड अगर हर साल समुद्र हमारा ले जाएगा, खा जाएगा, तो धीरे धीरे रहने की जगह कम हो जाएगी, और हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो लोग बढ़ जाएंगे, रहने की जगह नहीं होगी, फिर हम क्या करेंगे? हम मून पर जाकर गंदगी फैलाएंगे, है ना? अब देखो, उस टाइम तक मैं तो रहने वाली नहीं हूँ, ठीक है ना? और जितने भी आपके बड़े लोग हैं यहाँ पर सेशन में, वो भी एक इटर्नल ट्रुथ जो है हमारा, दैट वी ऑल फिनिश आवर कंप्लीट आवर लाइफ साइकिल एंड वी पेरिश। तो ये अर्थ आपके लिए रह जाएगी। अब इस अर्थ को अच्छी तरह से मेंटेन करने का काम आपका भी। आजकल मम्मी की मदद कर रहे हो ना घर मेंटेन करने में, या नहीं कर रहे हो? कितने लोग कर रहे हैं घर में मम्मी की मदद? कितने लोग डस्टिंग कर रहे हैं घर में? तो इसी तरह से, जिस तरह से हम अपना घर मेंटेन कर रहे हैं, उस तरह से याद रखो कि हमारा अर्थ भी हमारा घर है। और हाँ, क्या होता है कि जब हम लोग मैन मेड हाउसेस में रहते हैं तो एक घर ठीक नहीं होता तो हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, ना, रेनोवेट कर लेते हैं, राइट? अर्थ के साथ हम शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, सब लोग तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर हम अपने ही सोलर सिस्टम की बात करें तो कोई दूसरा अर्थ जैसा प्लैनेट है ही नहीं जहां पर लाइफ को लाइफ मिले। तो हमारे को क्या करना है कि हमारे को अपना अर्थ ही मेंटेन करना है, और अभी टाइम है कि हम थोड़ा से रिनोवेट करें, थोड़ा और ध्यान रहने के लायक बनाएं, राइट? और उत्कर्ष ने कहा है recycle, we can create category like paper, rubber and plastic. From paper we can make things, we can save paper to save tree. From rubber we can make cover the thing, right? Very nice, Pihu, you help your mother, that's a nice thing. Mahi also helps the mother. पलक प्रसून भी हेल्प करते हैं मम्मा की, और आराध्य भी करते हैं, आद्या सिसोदिया भी करती हैं, पुष्कर और आराध्या वाशने भी करते हैं, मोहित भी करते हैं, पूर्वा भी करती हैं, वैष्णवी भी करती हैं, नित्या भी करती हैं, वंश भी करते हैं, अंश भी करते हैं, पावनी भी करते हैं, और अर्जुन भी करते हैं, नंदिनी शिवांश भी करते हैं। तो सारे अच्छे वाले जो बच्चे हैं वो घर में मम्मी की हेल्प करते हैं। हो सकता है किसी का नाम मुझसे छूट गया हो तो मेरी तरफ से अपॉलॉजीज, बट यस, जितने भी अच्छे बच्चे हैं जो इस वक्त सेशन में हैं, मुझे मालूम है कि वो सब लोग अपनी मम्मा की घर पे हेल्प करते हैं, ठीक है? और इसी तरह आप हेल्प करते रहिए, बट फिर वही बात माइंडफुलनेस की। तो जब आप मम्मा की मदद करो तो वो माइंडफुलनेस के साथ करनी है, वो ध्यान से करनी है, नहीं तो मम्मी किचन में नहीं घुसने देगी। पता चला आप मम्मी की मदद करने किचन में घुसे, एक हाथ मारा गिलास नीचे स्लैब से, दूसरा हाथ मारा कंटेनर नीचे स्लैब से,
और तीसरा हाथ मम्मी का आने वाला है, फिर आपका नहीं चलेगा। आपने तो अपने दोनों हाथ किचन में भूचाल लाने में यूज कर लिए ना। कितने लोग ऐसे मदद करते हैं जरा बताओ। टेक योर नेम, ठीक है, वैष्णवी एंड गौरी, आपका नाम भी हम लेते हैं कि आप भी मम्मा की मदद करते हो, ठीक है। और मोनिका, जपनूर और बानी भी करते हैं, राइट। और सुवीर भी करते हैं। बाप रे, सबका नाम ले दिया मैंने। हाँ, जिसका नहीं ले दिया उसको एक मेरी तरफ से आप ये मान लो कि आप सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। और जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो मम्मी की मदद जब करते हैं तो वो ध्यान से करते हैं। वो बहुत केयरफुली जो भी टास्क दिया जाता है पहले उसे समझते हैं, फिर अगर कोई उसमें कंफ्यूजन होता है तो पूछते हैं कि ये हमारी समझ में नहीं आया, ये बता दीजिए कैसे करना है। और उसके बाद जो टास्क जैसे दिया जाता है घर में वैसे करते हैं। ये तो मम्मी की मदद की बात हो गई। इसी तरह से पापा की मदद, दादा दादी की मदद, और बाकी घर में जो भी बड़े आपको कहें हेल्प करने की, उनकी करनी चाहिए, ठीक है। और जब आपके स्कूल खुल जाएं तो यही चीज आपको स्कूल में भी करना है कि जब मैम आपको कोई टास्क देती हैं तो उस टास्क को हमें अच्छी तरह से करना है, ध्यान से करना है, माइंडफुली करना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने फाइनल पॉइंट की, वो है सस्टेनेबिलिटी की, राइट। तो हमने अभी क्या समझने की कोशिश की कि माइंडफुलनेस क्या है, गड़बड़ कहाँ कहाँ हो रही है और कौन गड़बड़ कर रहा है, और इस गड़बड़ को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। और हमने अपने कंट्रीब्यूशन की बात की, मेरे कंट्रीब्यूशन की बात, आपके कंट्रीब्यूशन की बात। अब यहाँ पर हमें बात करनी है सस्टेनेबिलिटी की भी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? तो सस्टेनेबिलिटी प्रोसेस है जहाँ पर आप जो भी कुछ एक सस्टेनेबल या लॉन्ग टाइम तक और रिसोर्सेज को यूज कर, हम इसके लिए वो आपको हेल्प करें। सस्टेनेबल रिसोर्सेज हैं जो हमारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एक बार खत्म हो जाएंगे तो वो दोबारा नहीं आ पाएंगे। जैसे ऑयल है, जैसे कोल है, इनको सदियों लग जाते हैं बनने में, या पानी है। तो हम इन सब का प्रयोग इस तरह से करें कि हम लंबे समय तक इनको यूज कर पाए। पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों का तो सस्टेनेबिलिटी का सीधा सा हिसाब है, अगर आपको एक पेड़ काटने की जरूरत पड़े तो आपको 10 पेड़ लगाने हैं। कितने पेड़ लगाने हैं एक पेड़ पर? 10 पेड़ लगाने हैं। और आप लोगों के बर्थडे पर भी आप एक काम कर सकते हो, सब लोग अपने अपने बर्थडे पर जो जितने साल का होता है उतने पेड़ लगाएगा, तो फिर हमारे को ये जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, जो ग्रीनरी सस्टेन करने की प्रॉब्लम है, उससे हम बच जाएंगे। जैसे मैं जितनी भी बड़ी हूँ, अब मैं एज नहीं बता सकती आप लोगों को, बट इतना समझ लो कि जो आपकी दीदी है ना, जो मेरी बिटिया है, वो 22 इयर्स की है। तो मैं 22 इयर्स की बिटिया की मम्मा हूँ, तो ये तो समझ में आएगा कि मैं अच्छी खासी बड़ी बुजुर्ग महिला हूँ, राइट। तो अब मेरा जब नेक्स्ट बर्थडे आएगा तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं जितने साल की हूँ, अच्छा ठीक है, मैं 46 इयर्स की जब हो जाऊंगी नेक्स्ट ईयर, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को 46 पेड़ लगाने हैं। तो ऑन एन एवरेज मैं 46 से ज्यादा ही पेड़ लगाती हूँ बेटा, बट हाँ आप लोग धीरे धीरे इस बात को अपनी हैबिट बना सकते हो। जैसे कोई आप में से 10 इयर्स का है तो नेक्स्ट ईयर आपको कितना पेड़ लगाना है, या अपने बर्थडे पे कितना पेड़ लगाना है? 11 पेड़ लगाने हैं। जो 12 का है वो 13 लगाएगा, जिसका बर्थडे अभी आने वाला है वो अपनी एज के हिसाब से पेड़ लगाएगा। और सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, पेड़ को पाल पोस कर बड़ा भी करना है। जैसे मम्मी आपको देती है ना, खाना देती है टाइम से, राइट, आपका सारे चीजों का ध्यान रखती है। अगर आपको कहीं छोटी मोटी चोट लग जाती है तो बैंडेड भी लगा देती है, ऑइंटमेंट भी लगा देती है।
तो हमें वो सारा ध्यान रखना है। आपको पेड़ को टाइम से पानी भी देना है, उसे खाद भी देनी है खाने के जैसे, उसको वीड्स अगर उसके आसपास हो जाए तो वो वीड्स भी उखाड़ के, तो इस तरह से आपको पेड़ को मेंटेन करना है और आप पेड़ को अपना फैमिली मेंबर मानकर उसको ग्रो करने में मदद करेंगे। तो ये हमारा एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक अच्छा वाला इम्पोर्टेंट वाला स्टेप हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको कोई भी काम करने से पहले अपने से सवाल करना होगा। वो सवाल ये होगा कि क्या ऐसा करके मैं अपने एनवायरनमेंट को, अपने अर्थ को किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहा हूँ। अगर जवाब हाँ में आता है तो फिर आपको अपने आप को उसके लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढने को बोलना पड़ेगा। आपको अपने आप को कहना पड़ेगा कि नहीं, अगर इससे नुकसान हो रहा है मेरे एनवायरनमेंट को तो मुझे ये नहीं करना, मैं इसे किसी और तरीके से करता हूँ, या मैं करता ही नहीं। अगर वो काम जरूरी नहीं है करने का तो कोई जरूरी नहीं है कि आप वो करें। ठीक है, तो अपना अगर हम ध्यान से माइंडफुली जो भी कुछ हम करते हैं जिससे हमारे क्लाइमेट को, जिससे हमारे सस्टेनेबिलिटी को नुकसान पहुंचता है, तो वो हमारे को कम करना है। और वो कम करने के साथ हमारे को कोशिश करनी है कि हम अच्छी तरीके से अपने अर्थ को एक बेटर प्लेस बनाते हुए और वहाँ पर उसको कंट्रीब्यूट कर सके एक अच्छी जगह बनाने के लिए। हाँ, ठीक है। तो अभी आप लोगों को सबको समझ में आ गया ना कि हमें क्या करना है? हमें एक नया प्लैनेट बनाना है। ठीक है, एक नया प्लैनेट जो कि हर तरीके से क्लीन हो, हर तरीके से सुंदर हो, हर तरीके से वेल मेंटेन्ड और वेल सस्टेन्ड हो। ठीक है, तो कर सकते हैं हम? अगर कर सकते हैं तो जल्दी से थम्स अप दिखाओ मेरे को एक फटाफट सा। वेरी नाइस। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एक हमने एक बहुत खतरनाक वाला वेस्ट अपने वेस्ट में ऐड किया है, वो है ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है? जो भी आपके घर में पुराने चार्जर्स पड़े हुए हैं, पुराने मोबाइल्स, पुराने लैपटॉप्स पड़े हैं, पहले कम थे, अब हर घर में बहुत सारा ई वेस्ट कचरा है। इसको आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको इसके लिए अपने सिटी में ढूंढना पड़ेगा कि कोई एक ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर हो जो कि आपसे ये ई वेस्ट लेकर जा सके। ठीक है, इसको आप आम रद्दीक वाले को नहीं दे सकते, या फिर आप इसको किसी और तरीके से डिस्पोज भी नहीं कर सकते। इसको डिस्पोज करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो आपको अपना ई वेस्ट भी मेंटेन करना है, क्योंकि आपकी जनरेशन के लिए और आने वाले समय के लिए ई वेस्ट हमारा एक मेजर वेस्ट बनने वाला है, बन ही चुका है, पर आगे आने वाले समय में ये चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो ई वेस्ट भी आपको अपना कम से कम रखना है और माइंडफुली, एम्पैथेटिकली मतलब दूसरे के बारे में सोचते हुए, और यहाँ पर अर्थ के बारे में भी सोचते हुए हमें अपनी रूटीन में जो भी हम चेंज कर सकते हैं वो चेंज लाते हुए चीज़ों को बेटर करना है। ठीक है, तो जो बात हमने की आज वो समझ में आ गई हमें? जल्दी से बताओ, थम्स अप आना चाहिए फटाफट से। वेरी गुड। तो अब अच्छे बच्चों को अगर कोई सवाल पूछना है तो ये अच्छे बच्चे मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, मैम आई डू विद माइंडफुलनेस। वेरी नाइस। यू डोंट, ओके, उत्कर्ष अच्छे से हेल्प करता है, ऐसे हेल्प नहीं करता, बाकी सब भी बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। ओके, तो इसके साथ
मैं एक छोटी सी कहानी और सुना दूं? किस किस को कहानी सुननी है? जल्दी से हैंड्स अप करो। वेरी नाइस अंशिका, आई टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट। अंशिका ने लिखा है, नो क्वेश्चंस मैम, as you make us understand in such a way that we don't have any question. Wow Anshika, thank you, you made my day beta. Oh ho, why there is volcano in water? अभी ये तो मेरे को भी नहीं पता why there is volcano in water, क्योंकि जो भी नेचुरल बॉडीज होती है वो कभी भी कहीं भी हो सकती हैं। सो वोल्केनो वाटर के अंदर भी हो सकता है और वोल्केनो माउंटेन भी हो सकता है। वोल्केनो तो कहीं भी हो सकता है, बट वोल्केनो है क्या? हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है बेटा, वो कुछ जगहों से क्रैक हो जाती है। तो क्या होता है कि हमारा जो अर्थ का कोर है, जो सेंटर है, उसमें लावा है, मॉल्टन लावा, जो कि बिल्कुल इतना ज्यादा हॉट है, इतना ज्यादा हॉट है कि कम से कम हमारे पास कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है जिससे हम उसकी हीटनेस को या उसकी इंटेंसिटी को, हीट की, चेक कर सके। तो जब कहीं भी अर्थ में एक कोई ऐसा क्रैक मिल जाता है लावा को कि वो बाहर निकल सके, तो वो वहां से बाहर निकलता है। अब वो जितने ज्यादा प्रेशर से निकलेगा, जितना बड़ा प्रेशर क्रैक होगा, वो उतना बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा। समुद्र में क्या है कि समुद्र की सतह जो है वो अर्थ के सेंटर के और ज्यादा पास हो जाती है, तो इसलिए वहां पर वोल्केनिक इरप्शंस होने के चांसेस डेफिनेटली रहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वहां पूरा टाइम वोल्केनो बस्ट होते रहते हैं। लाइक सन बेटा, अगर हम और पीछे जाएं तो हमारी धरती भी कहते हैं कि सन का ही एक टुकड़ा थी, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे सदियों में, बहुत सारे समय के साथ वो ठंडी होती गई और ठंडे होते 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 इस आज के फॉर्मेट में है। अब अगर हम बात करेंगे तो इसी पर पूरा सेशन हो जाएगा कि हमारी अर्थ जैसी पहले थी और जैसी अब थी वो कैसे बनी ऐसी। ठीक है। अब व्हाट इज लावा? लावा इज बेटा मॉल्टन solid which is very hot, which is basically metallic. It has got iron in it, it has got magnesium in it, it has got zinc in it. तो ये molten form में जो बहुत सारे metals हैं वो हमारे अर्थ के कोर में रहते हैं। वो जब बाहर निकलते हैं किसी इरप्शन से, वोल्केनिक से, तो उनको हम लावा बोल देते हैं। लावा, हम सब लावा के ऊपर बैठे हुए हैं। हम जहाँ बैठे हुए हैं उसके अगर कोर में जाएंगे, उसके अंदर जाएंगे ना, अर्थ के सेंटर की तरफ, तो अर्थ के सेंटर में सिर्फ और सिर्फ लावा है। Oh my God, Palak and Prasoon, they know how to make earth. I am sure you mean to say कि आपको अर्थ का मॉडल बनाना आता है, right? Very nice. तो जो आपको अर्थ का मॉडल बनाना आता है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं यूज करो जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली ना हो। ठीक है। तो इसके साथ हम ये सेशन वापस नायक सर को देते हैं। और हाँ, एक कहानी तो रह ही गई। तो वो कहानी ऐसी है, ये भी ना मैं कहानी, चलो आपको एक फार्मर के यहाँ की सुना देती हूँ। आज फार्मर की बात कर लेते हैं सारी। तो क्या था कि एक फार्मर के पास बहुत बड़ा फार्म था। अब उस बहुत बड़े फार्म में अब अकेले, अब जैसे मम्मी भी कहती होगी ना, घर का सारा काम मुझे अकेला करना पड़ता है, मैं तो बहुत थक जाती हूँ। तो इसी तरह वो फार्मर भी कहता था, फार्म का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है, मैं तो बुरी तरह से थक जाता हूँ। तो उसने क्या किया कि उसने एक लड़के को हायर किया। अब वो लड़का इस बार नायक सर नहीं थे, वो हर जगह नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब उसने एक किसी बच्चे को हायर किया और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पे रखता हूँ, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी क्वालिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। अब भाई कहीं नौकरी पे जाते हैं वो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब पूछते हैं ना,
अगर आपको ऑफ कोर्स ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, मम्मी से पूछना, पापा से पूछना, मैम से पूछना, सर से पूछना, सब बताएंगे कि भाई आपसे क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, एक्सपीरियंस पूछी जाती है। तो उस बच्चे से भी पूछा गया। उस बच्चे ने कहा देखो बाकी तो सर मैं कुछ नहीं जानता, बट जब आंधी आती है तो मैं आराम से सो सकता हूँ। उस लड़का पाकिस्तान ने कहा अरे ये कैसी क्वालिफिकेशन है, ये क्या बात हुई? उसने कहा जी जो भी है मुझे मेरा काम आता है और when wind blows I can sleep। लड़के की बात सुन के किसान को अजीब से लगा कि भाई व्हाट डज दिस मीन दैट आई कैन स्लीप व्हाइल द विंड ब्लोज। बट उसने कहा ठीक है, मेहनती लग रहा है, अच्छा काम करने की कह रहा है, रख लेते हैं। उस लड़के ने काम करना शुरू किया, मन लगा के काम करता था, माइंडफुली काम करता था, ध्यान से काम करता था, और किसान भी खुश था उसके काम से। अब एक रात को किसान की बीवी ने उसे जोर से जगाया, अरे उठो। किसान हड़बड़ा के उठा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? की बीवी ने कहा देखो तुम तो सोते रहते हो, कुछ नहीं पता चलता तुमको आसपास क्या हो रहा है, देखो कितनी तेज आंधी आ रही है, जाके बाहर देखो, सारे पशु डर जाएंगे, सारा अनाज उड़ जाएगा, ये हो जाएगा। बाप रे, किसान की बीवी ने आंधी तूफान से भी ज्यादा आंधी तूफान घर के अंदर खड़ा कर दिया और किसान को जबरदस्ती कहा जाओ बाहर देख कर आओ क्या है। किसान भी घबरा गया, उसने कहा ओ भगवान, ऐसा तेज आंधी तूफान तो कभी नहीं आया था। वो गया, उसने देखा, क्या देखा? सब कुछ गड़बड़? अरे नहीं, सब कुछ ठीक था। जो जानवर थे वो अपनी जगह पर, अपने अपने घरों में, अपने स्टेबल्स में, अपने यार्ड्स में, अपनी जगहों पर आराम से बंधे हुए थे। उनके सामने खाने की चीजें रखी हुई थी, वो अपना आराम से जुगाली कर रहे थे। जितना अनाज था वो सारा, जो बंद कोठरियां होती हैं, जो बंद रूम्स होते हैं, उनमें अच्छी तरह से बंद था, लैच था। बाकी भी जो चीजें थी वो प्रॉपर सारी रखी हुई थी। अब किसान ने कहा चलो ये सब तो ठीक है, पर अब मैं जाकर ये तो देखूं कि वो लड़का कहाँ चला गया, कहीं भी नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ आंधी तूफान में, ये नदारत है भाई साहब। अब उसने इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, यहाँ देखा, वहां देखा, नहीं मिला। फिर उससे कहीं से थोड़ी थोड़ी खर्राटों की आवाज आती सुनाई दी। वो धीरे धीरे वहां पहुंचा, देखा वो महाशय चैन की नींद सो रहे। बाहर आंधी है, तूफान है, जो है जैसा है सब चल रहा है, बट वो महाशय तसल्ली से सो रहे। अब किसान को बड़ा गुस्सा आया, मैं तो यहाँ जगह बैठा हूँ, ये आराम से सो रहा है। उसने जोर से जगाया, अरे उठ। अब वो लड़का उठे तो कोई बात हो। फिर उसने उठाया, उसने खूब कोशिश कर ली, वो लड़का उठ के नहीं दिया। फिर किसान ने अपने आसपास देखा और सोचा सही तो कह रहा था वो कि आई कैन स्लीप व्हाइल द विंड ब्लोज, क्योंकि जब विंड आ रही है तब भी तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। जहां पर जो भी चीज होनी चाहिए वो वहां पर वैसे ही है, जानवरों को जहां होना चाहिए वो वहां पर है, जिस चीज को जिस जगह रखा होना चाहिए वो वहीं रखी हुई है। तो जब ऐसा है तो फिर उससे सोने के, आराम से सोने के लिए कोई परेशानी नहीं है, वो तो आराम से सो सकता है। तो बच्चों, जब हम अपना काम ध्यान से पहले ही कर लेते हैं तो फिर जब कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम आराम से उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। तो अपना काम अगर आप माइंडफुली टाइम से करेंगे, रेगुलरली करेंगे, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम पहले तो वो आएगी नहीं, और अगर आ भी जाती है तो आप परेशान नहीं होंगे। आपको किसी भी तरीके से कोई भी चीज उसको ठीक से हैंडल करने में रोक नहीं सकती। सो विद दिस स्टोरी मेरी तरफ से आज का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे। ओवर टू नायक सर। Absolutely, ma'am. You were always
so fantastic with any of the topic. It is something children will like. These all storytelling methods जो हमारे दादा दादी नाना नानी सुनाया करते थे पहले, और सभी एस्पेक्ट्स को कहानी के थ्रू से ही बताया दिया जाता था. तो आज कहीं ना कहीं that is missing, and I think my children might have loved it. Thank you very much. Thank you very much, Over Dr. to- Nayak. It was lovely interacting with you all. Soshi ma'am, your final proceedings. Thank you, sir. Thank you, ma'am, so much. You have given fantastic explanation to our kids and also given tips to conserve our earth and resources and clear the queries of our little kids. From today's session, some of the eye-catching points are: mindfulness is simply being aware of what is happening right now or what is happening around us. It is receiving the present moment. Even it is pleasant or unpleasant, we have to accept it. And also we have to conserve our earth and resources for the coming generation. So, dear friends, dear students, let us all take a pledge in our mind to conserve our earth and resources for the coming generation or the future generation. Thank you once again, ma'am, and I request our academic head, Mr. Ravi Prabhakar sir, to give the vote of thanks. Thank you, ma'am. Happy morning, everyone. It's my pleasure to extend the vote of thanks on behalf of Doon family. I would like to thank our guest, Ms. Neha Sharma, for spending her valuable time among us. I would also like to thank our honorable principal, sir, who always tries his best to provide the better platform and better teaching and learning to all of us. I also thank our directors and all associated staff with this workshop and the students who have actively participated. Thank you very much, ma'am. Thank you very much to all. Thank you very much, ma'am. It was wonderful, and we will meet again soon. I think tomorrow in the morning, we have a yoga session also. Thank you. So that's all.